آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں جو رکھنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے رمضان کے بعد کی زندگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمایا، ایک بابرکت مہینہ جس میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے اس کے فرض روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بہت سارے گناہوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، فحش اور منکرات سے روکے رکھا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، معاشرے کے کمزور اور غریب طبقہ افراد کا خیال رکھا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا، ہماری بلندی کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ہمیں اور آپ کو ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے کو جو ہمارے لیے سجایا اور سنوارا تھا، کہ جس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، پکارنے والا فرشتہ پکار رہا تھا کہ اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائیوں کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ہم اور آپ کی ٹریننگ کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے، نیک اعمال سے بھر لیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا تھا۔ اور اس کا مقصد یہ قرار دیا تھا کہ تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، اللہ رب العالمین کے فرمانبردار بندے بن جائیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے، اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے والے بن جائیں۔ اور اس کا مظاہرہ دنیا نے کیا کہ کس طرح سے مسلمان پورا ایک مہینہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، کتنے غلط چیزوں کے عادی، غلط چیزوں کو چھوڑ دیتے، کتنے لوگوں کو غلط لت لگی ہوتی ہے لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر رمضان کے مہینے میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر ساری دنیا کے مسلمان ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے، تکبیر، تحلیل اور تحمید کے نعروں سے فضا کو معطر کرتے ہوئے اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے شکرانہ ادا کرتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں میں سب سے فطر پہنچاتے ہیں، پھر بعد میں بھی اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں۔ کہیں کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی برائی نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، نہ فضا کو دھوئیں سے اور پٹاخوں سے خراب کرتے ہیں، نہ اپنی زبان سے کوئی تکلیف دہ الفاظ نکال کر کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، نہ کسی کے مذہبی مقامات کو یا کسی کی دکان اور مکان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ اسلام کس قدر امن و آشتی کا اور
غم گساری کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا درس دینے والا، سبق دینے والا مذہب ہے، دین ہے۔ لیکن ایسے مسلمانوں کے لیے ایک لمحے فکریہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا دین عطا فرمایا، جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں پوری فضا تبدیل ہو جاتی ہے، پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہر جگہ خوشگوار ماحول نظر آتا ہے، لوگوں کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی، ہر طرح کی برکتیں اللہ رب العالمین شاور کرتا ہے، رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جن کے لیے۔ وہی مسلمان کیوں نہیں چاہتا کہ زندگی بھر اللہ رب العالمین اس پر اس طرح سے اپنی رحمتیں لٹاتا رہے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے باہر نکال لیتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو وعدہ کیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، بہترین زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں اس کا نمونہ دکھلاتا ہے۔ دنیا کا کوئی کام نہیں رکتا ہے، دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں، سارا کاروبار چلنے لگتا ہے، لیکن یہ مسلمان رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد کیوں اس فکر میں، اس ٹینشن میں اور اس شیطانی حربے کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہیں، اب اگر مسجد کی طرف گیا، اب اگر نماز کی پابندی کی تو دکان کا نقصان ہو جائے گا، اب مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب فرصت نہیں ہے۔ جب رمضان میں آپ مسجدوں کی طرف رخ کرتے تھے تب آپ کا نقصان نہیں ہوتا تھا، جب آپ تلاوت کلام پاک کے لیے، افطاری کے لیے وقت دیتے تھے تب آپ کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ تو اب رمضان کے بعد اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان کیسے ہونے دے گا؟ جبکہ اللہ رب العالمین خود وعدہ کرتا ہے کہ جو آپ کا رب رمضان میں تھا وہی اب بھی ہے، ہمیشہ وہی رب رہے گا، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اگر نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، مالداری سے بھر دوں گا، تیری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا، اور یاد رکھ اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی، تیری فقیری کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ تو کہیں اللہ رب العالمین کی اس وعید کے ہم شکار تو نہیں ہو جاتے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ موڑ کر ہم اپنے آپ کو دنیا کے ایسے مشاغل میں مشغول کر لیتے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی، وہی ضرورتیں جو رمضان میں پوری ہو رہی تھی بعد میں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ یہ لمحے فکریہ ہے، اس پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے، مصروف کر کے ہم کوئی کمی، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تو سال کے 11 مہینے ہم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہم نے جو عبادات انجام دی، کیا وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوئی؟ کیا کوئی کمی اور کوتاہی تو نہیں رہ گئی؟ اس مہینے میں جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تو اس وعدے کے ہم مستحق ہوئے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان سے روزے رکھے تو اس کے پیچھے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اس کے پیچھے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کا قیام کیا، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے پیچھے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا، کیا ہم اس کے مستحق ہوئے؟ یا پھر
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बद्दुआ के मुस्तहिक तो नहीं हो गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर उसकी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ये बद्दुआ कर रहे थे, जिब्रील अमीन बद्दुआ कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आमीन कह रहे थे कि जो शख्स रमजान का महीना पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सके, ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, ऐसा शख्स नाकाम नामुराद हो जाए, खाइब खासिर हो जाए, जो रमजान का महीना पाए अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सके। दोनों में से हमारा शुमार किसमें हुआ? क्या वाकई हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल हो गए, अपने गुनाहों को हमने बख्शवा लिया, या हमारे अंदर कमी कोताही रही और हम महरूम हो गए? इससे डरने की जरूरत है, और अल्लाह के नेक बंदे डरते ही हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही फरमाया है। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 और 61 आप पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि वो लोग अल्लाह के मोमिन बंदे, नेक सिफत बंदे वो होते हैं, अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे वो होते हैं जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अता किया उसको वो अल्लाह के रास्ते में देते हैं। उन्होंने अपनी सकत भर, अपनी मेहनत भर, अपनी इताअत भर अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च किया, इबादत की, और हाल यह है वो क़ुलूबुहुम वजिलतुन, उनके दिल डर रहे होते हैं। किस बात से? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि एक दिन उन्हें अपने रब के पास लौटकर जाना है। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात, यही वो लोग हैं जो नेकियों में सरकत करने वाले हैं, नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। वहुम लहा साबिकून, और उसमें सरकत करने वाले हैं। इनके बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसका जिक्र किया है कि जो अल्लाह के रास्ते में देते भी हैं और उनके दिल डर रहे होते हैं कि उन्हें अपने रब के पास लौट कर जाना है? क्या ये वो लोग हैं जो दुनिया में गुनाह का काम करते हैं, चोरी करते हैं, जनाकारी करते हैं, गुनाह करते हैं? आपने फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ऐ अबू बकर की बेटी, ऐ आयशा, ऐसा नहीं है, ये वो लोग नहीं है। बल्कि कौन लोग हैं? वलाकिन्नहुमुल लदीना यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ून, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, व यखाफूना अन्नहुम ला व यखाफूना अल्ला युक़बल मिनहुम, और इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं उनकी इबादतें रद्द तो नहीं कर दी गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बातें कबूल नहीं की गई। इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजे रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और सदका खैरात भी करते हैं, और इस बात उनके दिलों में डर भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने जो बातें की वो अल्लाह की हम मकबूल ना हुई हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बड़ी बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात बड़ी बेनियाज है। जहां हम इस बात के मुहताज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से हमें इबादत का मौका दे, हमें इबादत की तौफीक दे, हमें इबादत करने की ताकत और सकत दे, वही हम इस बात के भी मुहताज हैं कि अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल फरमा ले। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मौका दिया है कि इब्राहिम खाने काबा की तामीर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों, जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरी, अल्लाह के लिए आजमाइश में गुजरी, कुर्बानियां देते हुए गुजरी, अल्लाह ताला उन्हें एक खिदमत, एक इबादत का मौका दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए घर तामीर करो, खाने काबा तामीर करो। खाने काबा की दीवारें बुलंद कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह से दुआ भी करते जा रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमारे इस अमल को तो कबूल फरमा ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ हमारे रब तो हमारे इस दुआ, हमारी इस इबादत को, इस खाने काबा की तामीर को हमसे कबूल फरमा ले। यकीनन तू सुनने वाला है, जानने वाला है, तो हमारी दुआओं को सुनता है, तो हमारे दिलों का हाल जानता है कि हम तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए किस कदर मुहताज हैं, और इस बात के हाजतमंद हैं कि हम तेरी बारगाह में अपनी इबादत के मकबूल हो जाने पर, तेरी रहमत के मुस्तहिक हो जाने पर हमारी जिंदगी की जो कामयाबी है हम उसके मुहताज हैं, इसलिए दुआएं मांगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। अल्लाह के नेक बंदे दुआएं मांगते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। जैसा कि आपने रमजान के महीने में इससे पहले सुना कि असलाफ 6 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन से रमजान के महीने के पाने की
दुआएं मांगते थे, वही रमजान की इबादत करने के बाद, रमजान से फारिग होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी दुआ करते थे कि अल्लाह हमारी बातों को कबूल फरमा ले। और ये जिनकी कैफियत होती है, ये जिनकी सिफत होती है, यही वो लोग, अल्लाह ने खुद फरमाया, यही वो लोग हैं जो नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले होते हैं। अगर हमारे अंदर ये सिफत पाई जाएगी कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के बाद इस बात की फिक्रमंद हो कि हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल हुई कि नहीं, अल्लाह की हमारी इबादतें कबूल हो जाए, तो यकीनन हम फिर हमारी पहचान ये होगी कि हम नेकियों में और आगे बढ़ेंगे, हम सबकत करने वाले बनेंगे। ये नहीं करेंगे कि छोड़कर पीठ फेर कर पीछे हट जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल देखें कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से, अपनी तौफीक से आपसे अगले पिछले सारे गुनाहों को बख्श दिया, माफ कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज्यादा इबादत करते, इतना देर तक, इतना लंबा क़याम करते अल्लाह के लिए कि आपके पैर फूल जाते थे, फट जाते थे पैर। उमर मुनीन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर वैसे एहसान किया कि आपके पिछले अगले गुनाहों को माफ कर दिया है, तो आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं? आपने फरमाया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर एहसान किया है, अफला अकून अब्दन शकूरा, तो मैं क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से मुझ पर ये रहमत की कि मेरे गुनाहों को बख्श दिया है। तो अल्लाह के नेक बंदों का मामूल ये होता है कि जब उन्हें इस बात की खुशखबरी सुनाई जाए, उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बातों को कबूल कर लिया है, तो और अल्लाह की बातों में मेहनत करते और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अपने आप को थकाते हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अगर इबादत का मौका अता फरमाया है, तो क्या एक मुसलमान सिर्फ मौसमी मुसलमान होता है कि बस कुछ अरसे, कुछ मौके पर कुछ रस्में अदा कर दो कामयाब हो जाए? आप कुरान हदीस संभाल कर देखें, कहीं आपको जवाब नहीं मिलेगा कि कोई मुसलमान मौसमी होता कि जैसे कुछ बारिश का पानी बरसा और कुछ झाड़ झंखाड़ उग गए और वक्त के साथ मुरझा गए। नहीं, मुसलमान सदा बहार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को उस दरख्त से मिसाल दी है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, जिस पर कभी पतझड़ का मौसम नहीं आता है, वो हमेशा मुसलमान रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे और आपसे यही मुतालबा किया है कि मेरे बंदों, जिस इबादत के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है, वो इबादत तुम्हें सिर्फ मौसमों में नहीं करनी है कि बस 1 महीना की 11 महीने की छुट्टी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत आप पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहां हमें और आपको यह खबर देता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको ये भी हमसे मुतालबा करता है कि वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। अपने रब की इबादत करो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। मरते दम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी। सूरह अल-इम्रान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी मरते दम तक मुसलमान रहना है। सिर्फ कुछ मौसम में, कुछ दिनों में, कुछ लम्हों के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं करना है, बल्कि मरते दम तक मुसलमान रहना है। खात्मा इस्लाम पर होना चाहिए, और खात्मे के ताल्लुक से कोई इंसान नहीं जानता कि कब उसका खात्मा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हमेशा हर वक्त मौत को याद रखने का हुक्म दिया है कि मौत न जाने कब कहाँ आ जाए, किस हाल में आ जाए, किस सरजमीन पर आ जाए। अपने सहाबी का कंधा पकड़ा और कहा, कुन फी दुनिया का अन्य का गरीब और आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है या एक रास्ता पार करने वाला रहता है, कि चौकन्ना रहता है, हर वक्त तैयार रखता अपने आप को कि बस वो उसका सफर जारी है। सहाबी कहते हैं, फिर उसके बाद उनकी हालत ये हो गई, कहते इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिल सबाह, जब सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो, जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। यानी तुम्हारी जिंदगी में अगर सुबह आ जाए तो ये ना सोचो कि शाम तक जिंदा रहूंगा, अगर शाम तुम्हें मिल गई
تو یہ نہ سوچے کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا، کبھی بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ جب ہماری اور آپ کی موت کا کوئی جو وقت مقرر ہے اس کے بارے میں ہمیں بالکل خبر نہیں ہے، کوئی نفس نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کون سی سرزمین میں مرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھنا چاہیے، ہمیں اس عبادت میں اپنے آپ کو ہر وقت لگا کر رکھنا چاہیے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں گزرنا چاہیے۔ عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے، جہاں عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھے رہیں تبھی آپ عبادت کر رہے ہیں، وہی عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک مہینہ رمضان کی عبادت کر اس کا 11 مہینے کی چھٹی ہو گئی، یا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے میں ایک دن جمعہ سے جمعہ نماز پڑھ لی اور عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے کہ آپ صبح کی میٹھی نیند چھوڑ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی کے موسم میں پانی سے وضو کر کے اپنی مسجد میں جائیں اور اللہ رب العالمین سے رکوع سجدہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہے، تو آپ کو چھوڑنا ہے، اٹھنا ہے اس کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نماز ہو گئی، مسجد سے آپ نکلو، اب مسجد میں بیٹھنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ جاؤ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، دنیا میں جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی کا انتظام کرو، بیوی بچوں کے کھلانے پلانے کا انتظام کرو، گھر کا انتظام کرو، تو یہ بھی اللہ کی عبادت، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ رب کو پسند ہے، اس سے بھی آپ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کو یہ حکم ہے کہ اب دوپہر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، کام چھوڑو، اللہ کا بلاوا آ گیا، تو چلو مسجد کی طرف، اور پھر اپنے آپ کو اپنی روح کو آرام پہنچاؤ، اس کو غذا دو، جیسے صبح سے شام تک کام کرنے کے بعد آپ تھک کر اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، غذا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں تاکہ آپ کا جسم مضبوط ہو جائے، ایسے آپ کے روح کو آرام دینے کا اور اپنے روح کو غذا دینے کا وقت ہو گیا ہے، چلو ظہر کی نماز پڑھو، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی عبادت۔ کھانے کے بعد آپ آرام کریں، آپ دکان پہ رہیں، اللہ کا حکم ہے کہ عصر کی نماز میں آپ کو حاضر ہونا ہے، یہ اللہ کا حکم، یہ بھی عبادت۔ ایسے ہی رات کے آخر میں اختتام پر اللہ کا حکم ہے کہ آپ نماز کے لیے سونے سے پہلے نماز پڑھیں، بغیر عشاء کی نماز پڑھے آپ نہ سوئیں، تو یہ بھی اللہ رب کی عبادت ہے۔ اگر نماز ہو گئی عشاء کی، اس کے بعد اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ اس کے بعد بات چیت نہیں کر سکتے، آپ اس کے بعد اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول نہیں رکھ سکتے، آپ اب آرام کریں، آپ سوئیں، تو آپ کی نیند بھی عبادت، آپ کی نیند بھی عبادت میں گزر رہی ہے، اللہ رب اس پر بھی آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ نکاح کریں، آپ اپنی جائز خواہش پوری کریں، یہ بھی عبادت، اس میں اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے۔ آپ کے بچے ہوں، یہ بچے بھی آپ کے لیے سب کے ثواب ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، ان کا کھلانا پلانا بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے، یہ سب کا سب اللہ کی عبادت، یہ پوری زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اس طرح سے اگر ہم گزارتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا صدقہ خیرات، اپنی نکاح، اپنی کمائی اور اپنے شادی بیاہ، ہر معاملے کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، سب کچھ عبادت۔ عبادت صرف کسی موسم کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں، اور کب تک کرنا ہے؟ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی، تب تک آپ کو عبادت پر ثابت قدم رہنا ہے، آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر جم گیا، پھر اس پر استقامت اختیار کیا، جم گیا، یعنی اللہ رب العالمین کو آپ نے رب مان لیا، اللہ رب العالمین کو رب مان لیا۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو رب مانتے ہیں، اپنا پیدا کرنے والا، پالنے والا مانتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کے لیے جھکتے ہیں، اس کا ہر حکم مانتے ہیں، آپ کی زندگی اس کے حکم پر گزر رہی ہے اور مرتے دم تک آپ اس پر قائم ہے۔ جب آپ کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، آپ سے ہر مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تم اللہ رب العالمین کو جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔
हम दुनिया के अंदर भी तुम्हारे मददगार थे, तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत के अंदर भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे, और तुम्हारे लिए वहां हर वो चीज है जिसका तुम्हारा नफ्स चाहे, तुम्हारा दिल चाहे, और हर वो चीज है जो तुम तलब करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी होगी। इस खुशखबरी के साथ, इस बशारत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नाज़िल होते हैं किसके पास? जो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानकर जिंदगी गुजारता है। हदीस में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते, सवाल पूछते हैं, और हम सभी जानते हो 3 सवाल कौन से होते हैं। मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुका। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। लेकिन ये जवाब वही दे पाता है जिसने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी होती है, वरना कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कोई कितना रट के गया हो, लिख के ले गया हो, अहदनामा लेकर गया हो, वो नहीं जवाब दे पाएगा। जवाब वही दे पाएगा जिसने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी है। इसलिए जब वो जवाब देता है तो फरिश्ता कहता है, तू इसी पर जिंदा था, इसी पर तेरी मौत आई, और तू इसी पर उठाया जाएगा। मरते दम तक जब उस पर आदमी जिंदा रहता है तब उसको जवाब सूझता है, तब जवाब दे पाता है। आप तसव्वुर कीजिए, इस जुमले पर गौर कीजिए कि फरिश्ते आकर आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पे आप नावाकिफ। आप इस दुनिया में जब आते हैं तो आपके लिए पहले से बहुत सारा इंतजाम किया हुआ होता है। आपके माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, आपका पूरा खानदान कबीला होता है, आपकी जिंदगी गुजारने का सारा असबाब होता है, सारे सामान होते हैं। आपके बगैर मुंह से बोले, बगैर कहे सब कुछ आपके लिए हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन यहां से जाने के बाद, आप दूसरी दुनिया में जाने के बाद आपको कुछ नहीं पता है। आप फरिश्तों के हुलिये से वाकिफ नहीं है, उनके अंदाज से वाकिफ नहीं है, आपके साथ क्या मामला करने वाले आप उनसे वाकिफ नहीं, आखिरत में आपके साथ क्या मामला पेश आएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि आप ऐसे मुल्क में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह में, किसी ऐसे शहर में आप जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं जहां के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, आपकी घबराहट का क्या आलम होता है। और कोई आदमी अगर ऐसे मौके पर आपको तसल्ली, दिलासा दे कि घबराने की कोई बात नहीं, खौफ मत करो, गम मत उठाओ, हम तुम्हारे साथ में, तुम्हारे लिए वहां सारा इंतजाम है, तुम्हारे लिए वहां सब कुछ इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है, आपके सुकून का क्या आलम होगा। तो जब एक इंसान ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जाता है, आलम आखिरत का सफर करता है, आलम बरज़ख में जाता है, वहां कितना घबराहट, कितनी घबराहट का मकाम होता है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज्यादा घबराहट वाली कोई जगह नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते थे, कब्रिस्तान को देखते थे तो इस कदर रोते थे कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। उनसे कहा गया कि आपके सामने जिन पर जहां तस्करा किया जाता है आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं? तो कहते कब्र से ज्यादा घबराहट वाली जगह कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब कब्र से ज्यादा घबराहट वाली जगह कोई नहीं है। ऐसी घबराहट वाली जगह में जाने से पहले अगर आपको कोई तसल्ली दे, दिलासा दे और कहे कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खौफ ना खाओ, गम ना करो, खुशखबरी कबूल करो, हम तुम्हारे साथी हैं, दुनिया में तुम्हारे साथ में रहते थे, आखिर में तुम्हारे साथ में रहेंगे, क्या आलम होगा ऐसे इंसान की सुकून का। तो इस तरह से इस्तिकामत इख्तियार करने वालों को अल्लाह रब्बुल की तरफ से बशारत सुनाई जाती है। तो एक मोमिन जिंदगी भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारता है, पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। वो मौसमी मुसलमान नहीं होता है, वो हमेशा के मुसलमान होता है। और आप तसव्वुर करें कि अगर आपने एक महीने में इतनी सारी बातें की, रोजे भी रखे, ज़कात भी आपने निकाली है, आपने क़यामुल लैल भी किया है, आपने तौबा इस्तिग़फ़ार भी किया, तिलावत कुरान भी किया है, अब उसके बाद 11 महीने आपसे उससे हल्के अमल का मुतालबा किया जा रहा है। अब आपको ज़कात आपने रमजान में निकाल दिया, ज़कात नहीं निकालनी। हज आपने जिंदगी में एक बार कर लिया, आपसे हज का मुतालबा नहीं किया जा रहा है। अब आपसे फर्ज रोजे का मुतालबा नहीं किया जा रहा है। अब आपसे 11 महीने सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको रमजान जब आएगा तब फर्ज रोजे रखने हैं। अगर आपकी खुशी आप चाहते हैं तो नफली रोजे आप रखें। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने का रोजा रख करके 10 महीने का रोजा मैंने पा लिया है, सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं, तो 6 दिन का रोजा और सवाल में रख लें ताकि 7 दिन के रोजे का स्वाब मिल जाए और मेरे साल के पूरे 12 महीने रोजे से गुजर जाएं। तो ये आपसे अपने इख्तियार पर अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ दिया है। ये आपके लिए वाजिब नहीं किया गया, जरूरी नहीं किया गया। जैसे रमजान के महीने का रोजा जरूरी था, ये सवाल के 6 रोजे जरूरी नहीं किए गए, लेकिन आपके लिए एक मौका ये भी दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए रोजे में गुजरे,
तो आप ये तरीका इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अमल का बदला कम से कम 10 गुना देता है। आपने 1 महीने का रोजा रखा, 10 महीने के रोजे का सवाब आपको मिल गया। आप अगर 6 दिन का रोजा और रखेंगे सवाल में, तो 2 महीने का और यानी 4 दिन का रोजे का सवाब मिल जाएगा। आपका पूरा 12 महीना गोया कि रोजे से गुजर गया। ज़कात आपको नहीं अदा करनी है, नफली सदका आपको देनी है। आप मस्जिद मदरसे में गरीबों को सदका व खैरात दीजिए, लेकिन अब साल के 11 महीने सिर्फ 5 वक्त की नमाज आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि आप 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिदों में आइए। तो आपकी कैसी ट्रेनिंग हुई है कि 1 महीना तो आपने जी तोड़ मेहनत की, खूब कोशिश की, लेकिन उससे गुजरते ही फौरन 5 वक्त की नमाज भी अदा नहीं हो पा रही है। आपका ईमान इतना कमजोर हो गया है। ये कैसी तरबियत हुई है, कैसी ट्रेनिंग हुई? और याद रखें, ये नमाज जहां इस्लाम का एक रुकन है, एक बुनियादी फरीजा है, और आपके लिए कितना जरूरी है आप इससे अंदाजा लगाएं कि दुनिया के अंदर भी आज जो हम जिस दौर में जी रहे हैं, जिस माहौल में जी रहे हैं, कदम कदम पर हमें अल्लाह की मदद की जरूरत। ये फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है, फहाशियों का दौर है, मुनकरात का दौर है। हम और चाहते हुए बहुत सारी बुराइयों से नहीं बच पाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नुस्खा दे रहा है कि अगर अल्लाह की मदद चाहते हो, इन फहाशियों से, इन फितनों से, इन मुनकरात से मुकाबला करना चाहते हो, तो नमाज को थाम लो। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, ये नमाज तुम्हें फहाशियों से, मुनकरात से रोक देगी। अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए सामने हाल होगी। या अल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज के जरिए, सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। तो ये नमाज अगर आप पाबंदी से पढ़ेंगे तो आप याद रखें, आज लोग दीन इस्लाम को छोड़ छोड़ कर मुर्तद हो रहे हैं। आज लोग फहाशियों में डूब रहे हैं, मुनकरात के शिकार हो रहे हैं, और लोग अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इन तबाही से आप अपने आप को, अपने घर वालों, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, नमाज के पाबंद हो जाएं, मस्जिद से जुड़ जाएं, अपने घर वालों को मस्जिद से जोड़ दें, आप सारे मुनकरात, सारे ख्वाहिशात से बच जाएंगे। ये कुरान का दिया हुआ नुस्खा है। और आखिरत के मराहिल में भी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ये नमाज आपको कामयाब करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे की चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज। फ़इन सलहत सलह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। और रिवायत के अंदर है, अब फरमाया कि अगर नमाज दुरुस्त निकली, सारे अमल दुरुस्त निकलेंगे, ये गारंटी। अगर नमाज आपकी बेकार निकली, सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। एक दूसरी बात के अंदर है कि उसकी नमाज के बारे में देखा जाएगा, गौर किया जाएगा। अगर नमाज उसकी सही है, अफलहा, तो वो कामयाब हो जाएगा, और अगर उसकी नमाज बेकार निकली तो वो खाइब व खासिर होगा, नामुराद हो जाएगा। तो नमाज आपको दुनिया के अंदर भी आपके लिए कितनी मददगार है, आखिरत के लिए कितनी मददगार है, आप इससे अंदाजा लगाएं। इसी तरह से फराइज के साथ साथ अगर आप नवाफिल की भी पाबंदी करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा है। आपके पास सुबह सूरज निकलने से लेकर के सूरज के ढलने तक, यानी जवाल तक तकरीबन 6 घंटे होते हैं। इन 6 घंटे में आपको 3 मिनट देने के लिए कहा गया है कि अगर 2 रकात नमाज आप अदा कर लेते हैं, 2 रकात नमाज अदा करने में आपको कितना लगेगा? 3 मिनट, 4 मिनट। इस 6 घंटों में अगर आप 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं तो आपके पूरे बदन के 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। और अगर थोड़ा सा और वक्त दे करके फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर बैठे रहे, अल्लाह का जिक्र करें, और नमाज सूरज निकलने के बाद भी रकात पढ़ कर उठें, तो आपको मुकम्मल तौर पर एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। अगर आप रोजाना फराइज के साथ साथ 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, फजर से पहले 2, जोहर से पहले 4, जोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, ईशा के बाद 2, ये 12 रकात सुन्नत अगर आप अदा कर लेते हैं, रोजाना अपने जन्नत में एक महल तैयार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से रमजान में आपने तरावी पढ़ी है, ऐसे साल के 12 महीनों में आप क़यामुल लैल करते हैं, आप तहज्जुद पढ़ते हैं। आप जितना भी पढ़ें, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितना भी आप पढ़ें, क़यामुल लैल अगर आप करते हैं रात में, तो ये अल्लाह ने फरमाया, इसकी फजीलत ये है कि फ़इन्नहु दाबुस सालिहीन क़ब्लकुम, ये तुमसे पहले के सालिहीन का तरीका है, यानी सालिहीन में आपका शुमार हो जाएगा। वह क़ुर्बतुन इला रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब से क़ुर्बत का जरिया है। तहज्जुद की नमाज, रात की नमाज जो आपके लिए सोने के लिए मिलती है, इशा की नमाज के बाद से लेकर के सुबह सादिक तक आपको 8-10 घंटे मिलते हैं सोने के लिए। उसमें से अगर निकाल कर आप आधा घंटा, 1 घंटा का नमाज पढ़ लेते हैं तो आपको सालिहीन में आपका शुमार होता है, आपको रब का क़ुर्ब मिल जाता है। वो मुकफ़्फ़िरतुन लिसय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों को, बुराइयों को बख्शने का जरिया है, हो जाएगा।
वमनहात लिल आसाम, और गुनाहों से आपके रोकने का जरिया सबब बन जाएगा, आपको कुव्वत देगा कि आप अपने आप को गुनाहों से रोक सकेंगे। वो मतरदतुल लिद्दा यानी जसद, और आपके जिस्म को बीमारियों से रोकने का जरिया बन जाएगा। आज लोग सुबह सुबह उठ के जिम जाते हैं, योगा करते हैं ताकि बहुत सारी बुराइयों से अपने आपको बचा सकें, सेहतमंद रह सकें, जोड़ों को बचा सकें। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन योगा भी है कि अगर आप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो आपका जिस्म बीमारियों से पाक रहेगा, आप गुनाहों से बचने की ताकत और पावर आपको मिलेगा, आपके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, आपका कुर्ब हासिल हो जाएगा, अल्लाह के खास बंदों में सालिहीन में आपका शुमार हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ रब्बुल आलमीन हम सबको इबादत जिसके लिए हम और आपको पैदा किया गया है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दुनिया आखिरत में भलाई का वादा किया है, उस पर साबित करनी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको शैतान के हथकंडे से बचाए, रब्बुल आलमीन हम सबको फिसलने से बचाए, रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक जिंदा रखे दिन इस्लाम पर जिंदा रखे, जब दुनिया से उठाए तो हालत ईमान पर उठाए, जन्नत फिरदौस से हमारा ठिकाना बनाए, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरिल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम व युज़किरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।